Hello my dear student, good morning. Welcome in biology class. Today I am going to describe chapter number 8, that is cell structure and function. So let us introduce about the what is the basic term related to the cell. So simply we study in our lower classes from class 9th, also in the class 8 about the cell. Cell is the basic structural and functional unit of life. Simply we know that our body function is made up from the cell. This is the basic unit of the life. Let us consider one by one in the very simple language. First question arises, what is a cell? So simply we know that about the cell is the basic structural and functional unit of life. All the living and non-living organism both, because living and non-living organism both are made up from the smallest unit, that is known as in the organism cell. One term here, cytology is came. Cyto means cell. This cyto means cell, and logy means, that is term related from the Latin again logos, that meaning is study. Cytology simply we can say study of cell is known as cytology. So study of structure and composition of cell is called cytology. Cytology means study of cell. One next term, this is the very famous definition of the cell, that is cell is the structural and functional unit of life. So simply one question came in our mind, unicellular and multicellular organism. Unicellular organism, the organism that perform their basic function from only one cell. There all the basic function is performed by the only one cell. For example, unicellular, many example amoeba, paramecium, euglena, etc. are the example of unicellular. Uni means one, cell means cellular. Cellular means all the basic function performed by the only one cell, single cell. एक ही सेल में उनका पूरे जीवन की जितनी प्रोसेस होती है सब एक ही सेल में पूरा होता है. नेक्स्ट वन इज द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टी मीन्स many, more than one cell. We know that when more than one cell combine together perform a function that are called tissue. You already learned in the lower class 9, already in the class 11th, previous chapter number 7, tissue. So different kinds of the tissue perform the basic function of the multicellular organism. We are the multicellular organism. All the human beings are the multicellular organism. Another cow, buffalo, etc. They all the basic functions are performed by the and essential work performed by the more than one cell. When more than one cell simply combined they are tissue. Multicellular organism जितने भी होते हैं उसमें सिंगल सेल नहीं पाया जाता है. Because अगर सिंगल सेल होता, we know that single means one, unicellular organism ही होते हैं. Next one is the here about the discovery. Sir Edmund Leeuwenhoek is a scientist who first saw about the live cell, living cell in the water. लिविंग सेल को जाना था एडमंड लीवेनहॉक ने. पहली बार अगर पूरी दुनिया में सेल को बताया किसी ने तो उनका नाम है एडमंड लीवेनहॉक. आज करंट में एडमंड लीवेनहॉक जो क्राइटेरिया है उनका चेंज हुआ किस तरफ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी की तरफ. इसलिए हम लोग एडमंड लीवेनहॉक को बोलते हैं क्या, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. यू कैन राइट एडमंड लीवेनहॉक आल्सो नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. नेक्स्ट वन इज द Robert Brown. Another name, Robert Brown was scientist who discovered about the nucleus in the cell. सेल जितने सेल दुनिया में पाए जाते हैं, चाहे यूनिसेलुलर हो ऑर्गेनिज्म चाहे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, उनके अंदर सेल में न्यूक्लियस को बताने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, रॉबर्ट ब्राउन. Simply, and they are studying about the cell modification given by the Schleiden and Schwann in 1838 along that 1838
39. Schleiden and Schwann proposed the cell theory. One question here. Matthew Schleiden study about the different kinds of the plant, and he discovered about the plant have the more different kinds of the cell also. Along that Matthew Schleiden in 1838 इन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट की स्टडी पहली बार किया, प्लांट में बताया कि जितने भी प्लांट दुनिया के हैं वो बने होते हैं किससे? सेल से बने होते हैं. डिफरेंट काइंड सेल से बने होते हैं, अलग अलग सेल से बने होते हैं. प्लांट के बारे में बताया इन्होंने स्लाइड, और स्वान बाद में आया प्लांट और एनिमल दोनों के बारे में बताया. इन्होंने एक और मॉडिफिकेशन इसमें ऐड किया. ही डिस्कवर्ड अबाउट द प्लांट सेल एंड एनिमल्स हैव ए आउटर लेयर, आउटर कवरिंग लेयर पाया जाता है उसकी. कोई भी सेल होगा उसके आउटर कवरिंग पाया जाता है, कवर पाया जाता है. अदरवाइज अगर सेल में कवरिंग ना होती, व्हाट हैपन, जितना उसका फ्लूइड है सब क्या होता है, ब्रस्ट होकर के बाहर हो जाता है. जैसे हम लोग बाउल लेते हैं, सिंपली कटोरा ना, उसमें कोई भी आइटम रखता है, अगर उसमें वाल ना हो चारों तरफ तो फैल जाएगा इधर से उधर. जैसे हम लोग बफेट सिस्टम में जाते हैं भोजन करने के लिए, प्लेट में ले लेते हैं, जितना आइटम होता है सब उसमें रिमिक्स हो जाता है नहीं. तो उसमें अगर उसमें क्या होगा, अगर वाल होता सेपरेट एक एक, उसमें पैचेस बने होते हैं जैसे ना, तो क्या होता, सब अलग होता और मिक्स ना होता. उसी को बताने वाले स्वान थे. बाद में उन्होंने डिस्कवरी स्टडी किया किस पे, प्लांट और एनिमल सेल में. एनिमल सेल में बताया उन्होंने जो एनिमल की सेल की आउटर कवरिंग है वो बनी होती है किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर कवरिंग पाई जाती है. और जब सेल प्लांट सेल की अध्ययन करने लगा उन्होंने स्टडी, उसमें बताया जो प्लांट सेल की आउटर कवरिंग है दैट इज मेड अप फ्रॉम द सेल वॉल. सेल वॉल से बिकॉज क्यूटिनियस होता है, बहुत ही स्ट्रांग पाए जाते हैं उसमें, क्यूटिकल पाए जाते हैं. छोटी क्लास में हम लोग पढ़ा स्ट्रांग प्रोटेनियस वॉल सेल वॉल पाया जाता है जो कि बहुत स्ट्रांग होता है. सिंपली हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोग का जो सेल है ये आउटर कवरिंग है, अगर स्किन हटाएंगे कहीं से भी तो इतना टफ नहीं है, इतना स्ट्रांग नहीं है. और लेकिन अगर हम प्लांट में जाएंगे उसमें क्या होगा, बिना किसी यूटेंसिल के उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते, बिना किसी औजार के नहीं उसके बार को हटा पाते. सिंपली अगर वो स्ट्रांग है ना, इतना तो आप लोग जानते होंगे. नेक्स्ट, ये सेल इन्होंने केवल बताया, स्लाइडन और स्वान ने केवल बताया क्या कि प्लांट डिफरेंट काइंड के सेल से बने होते हैं. एनिमल के पास, एनिमल भी डिफरेंट काइंड के सेल से बने होते हैं. एनिमल की आउटर कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और प्लांट की आउटर कवरिंग क्या है? सेल वॉल है. लेकिन इन दोनों में एक कमी हो गई. स्लाइडन एंड स्वान ने एक कमी बता दिया. कमी क्या थी कि उन्होंने ये नहीं बताया कि सेल कहाँ से आते हैं, सेल जो ऑलरेडी हैं वो कहाँ से बनते हैं. तो उन्होंने ये बताया. बाद में आए रुडॉल्फ वर्चू एक साइंटिस्ट, उन्होंने बताया जितने भी सेल, ऑल द सेल अराइजेस फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले से मौजूद सेल से ही दूसरा सेल आता है. ठीक, इतना आप लोग छोटी क्लासों में पढ़ा होगा. जितने सेल होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं. सो दिस इज अबाउट द शॉर्ट टर्म इंट्रोडक्शन अबाउट सेल. First one is the cytology. Cytology means simply we know cyto means cell and logy means study. That is term come from the Latin word, and simply we can say cytology term related to the study of cell is known as cytology. कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट साइटोलॉजी, व्हाट इज साइटोलॉजी. तो आज से आपके दिमाग में क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए. साइटोलॉजी मींस स्टडी ऑफ सेल. सो नेक्स्ट वन इज द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. क्यों ऐसा बोला गया? बिकॉज वी नो दैट आवर बॉडी इज मेड अप फ्रॉम द मल्टीपल सेल. अगर बॉडी पार्ट को सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में किया जाएगा तो क्या कहलाएगा? दैट इज सेल. सेल ही तो कहलाएगा, एक सिंगल. अब यहाँ पे कंबाइंड होकर के सेल आप लोअर क्लास में पढ़े होंगे. मल्टीपल सेल मिलकर के बनाते हैं टिश्यू बनाते हैं क्या? ऑर्गन को, और ऑर्गन मिलकर के पूरे ऑर्गन सिस्टम बॉडी को बना देते हैं. ये सब तो आप पढ़े छोटे क्लास में ना. और सेल ऑर्गेनिज्म में ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिज्म आर टू टाइप, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये भी जानते हैं. एटन वन लीवेनहॉक सिंपली इन्होंने फर्स्ट डिस्क्राइब किया लाइव सेल को. दूसरे बाद में रॉबर्ट ब्राउन ने क्या बताया कि सभी सेल के अंदर क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियस पाए जाते हैं.
स्लाइडेन और शॉक क्या थे, 1838 और 1839 में उन्होंने क्या बताया, कंबाइंड टुगेदर सेल थ्योरी के बारे में बताया। सेल किससे बने होते हैं, सेल में आउटर कवरिंग क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बताने वाले स्वान हैं। और स्लाइडन ने बताया कि जितने भी सेल होते हैं, प्लांट के अध्ययन किया था उन्होंने, सब मल्टीपल डिफरेंट काइंड के सेल से बने होते हैं। और मॉडिफिकेशन क्या हुआ इनके अंदर, स्लाइडन और स्वान की कमियां क्या हुई, ये नहीं बता पाए कि सेल कहाँ से आते हैं या पहले से सेल कहाँ से आते हैं। रुडॉल्फ वर्च एक साइंटिस्ट, उन्होंने इस पे अध्ययन किया और बताया कि जितने भी सेल होते हैं पहले से मौजूद और प्री एग्जिस्टेंट सेल से आते हैं। दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर नंबर 8।